Welcome to my channel. Today we are going to start statistics. The chapter number 14 statistics in both the syllabus CBSE and SSE. Now, already we have finished some topics in this statistics chapter. I hope you all people seen this all videos like a formulas, basics formulas of statistics and mean, median and more. And already median also one of the problem this type of question we have done this one. This median already we have finished with the box, and now today we are going to start the second concept mean. And already mean three methods all their formulas like this: direct method, assuming method, step deviation method. Most of these students they are facing the problems, so which method better to use in the mean? So means I think so in mean you have to first simple method is very easy, no need to write that one. But in this 2 marks question, yeah, 1 mark, 2 marks and 1 mark, yeah, objective type questions, there will be some simple use direct method. But now this LAQs for section number 3 LAQ and 6, yeah, 8 marks, so better to you have to solve 3 methods. Direct you have to step deviation method. How to solve it I will do. You everyone focus on the board. See, look at here. Now first we know that this is the same monthly consumption: 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, like this. The rows is given, and first row and the second column already is given. This range to how many of this consumer number of consumers: 4, 5, 13, 20, 14, 8 and 4. So these 2 rows you have to first in every type of question, या mean हो या mode हो and median, in 3 steps में आपको चाहिए कि you directly write in first row to column. So first row first column, that is called as class interval. What we call class interval? Yeah, direct you have to write the monthly, whatever is there given in this question, no problem. You have to write this simple. Monthly consumption is nothing but class interval. This is called class interval. So write this simple: 65 to 85 and 85 to 105. I'm writing, I'm seeing and writing. क्या करा मैंने? कुछ भी नहीं देख रहा हूँ मैं, जस्ट लिख रहा हूँ. बच्चे कंफ्यूज होते रहे, सर क्या करना है, कितना लेंथी है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है. सिंपल है, हमको सीधा अपने क्वेश्चन में से ही कॉपी कर लेना है. बाजू देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, ना तो गलती होगी. सिंपल अपने क्वेश्चन में पूरा रो है, वो रो को कॉपी करिए आप लोग. 185 एंड लास्ट है 185 टू 205. देखिए मैंने तो सिंपल कॉपी किया है फर्स्ट रो को, तो हम बॉक्स बना लेते हैं यहाँ तक का कंप्लीट. ये हुआ हमारा फर्स्ट रो. तो ये जो फर्स्ट रो हमारा बना है, इसी के साथ साथ अब हमको सेकेंड कॉलम भी देखने को मिलेगा क्वेश्चन में ही. तो यू हैव टू राइट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. ये कॉलम हम तैयार कर दिए, सिंपल लाइक दिस. तो इसको हम कहते हैं FI, यानी फ्रीक्वेंसी. इसके बगैर तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते. तो देखिए अब हम कितना सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, मगर आप लोग पेंसिल और स्केल अच्छे से नीट बॉक्स बनाना है. मैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरीके से 1-1 कॉलम उतार रहा हूँ, बट आप क्या करना, सॉल्व करने से पहले कॉलम्स काउंट कर लेना, देन मेक ए बॉक्स एंड राइट नाउ. तो अब क्या करेंगे, इसको हम, ये फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया हुआ है 4, 5, 13, 20. मैं यहाँ से देख के कॉपी कर रहा हूँ. ओके, 20 के बाद आएगा 14 और 8 एंड 4. ये हो गया मेरा कंप्लीट, जो हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. इसी के साथ साथ अब हमको क्या करना होगा कि बच्चों को कंफ्यूज होता है, अरे सर ये तो कॉपी कर लिए, गिवन दैट था, इसमें तो हम आसानी से स्कोर कर लिए. बट नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमको नेक्स्ट स्टेप फाइंड आउट करना है XI. XI फाइंड आउट करने के लिए चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो या सिंपल मेथड हो, वो सिंपल डायरेक्ट मेथड हो या एज्यूमीन या फिर हो स्टेप डिविएशन मेथड, ये यूज होना ही होना है. तो देखिए अब XI कैसा आएगा, ये दोनों जो है रेंज, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इसको हम कहते हैं, ये सब लोअर लिमिट है
ये अपर लिमिट है, इसको हम लोअर लिमिट को स्मॉल एल इंडिकेट करते हैं, इसको यू। तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ये दोनों को मिलाने के बाद उसको हाफ कर दो, ऐसा भी कर सकते, या दोनों का फॉर्मूला है सिंपल। किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम, 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2। अब हम 65 को 85 को मिला दें तो ये 10 हो गया, ये कैरी, ये कितना हो गया 7 7 150 49 8 150। अब 150 को 2 से डिवाइड कर दो, 150 को 2 से डिवाइड इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, हर तरीके से बता रहा हूँ। इसको हाफ हाफ भी दे सकते हैं, जैसे कि हमको घर में दे दिए 150 रुपीज़, बेटा दोनों बांट लो, 50 हाफ हाफ कर लो, तो यहाँ हमारा दिमाग बहुत अच्छा चलेगा कि जैसे ही हमारे घर में पेरेंट्स हमको 150 रुपीज़ देते हैं 2 भाइयों को, तो दे विल बी टेक लाइक दिस 50-50। सो जल्दी इमीडिएटली जाते हैं दोनों, 75 रुपीज़ तुम ले लो, 75 रुपीज़ तुम ले लो, बिकॉज हमको यहाँ पर बहुत अच्छा माइंड चलता है। फिर यहाँ अगर हम पूछ ले, अरे सर ये क्या है, 150 को 150 बाई 2 बोलते कि, अरे कुछ भी नहीं है, दोनों को डिवाइड करो जिस तरीके से 2 7 14, यहाँ हो गया 1, ये 0 को नीचे उतार लो, 2 5 10। ये है डिवीजन मेथड। और यहाँ पर हम 2 1 2 7, फिर यहाँ पर 14 में से 1 बचा 10, 2 5 10। देखो दो मेथड्स में हमको बेसिक समझ में आ रहा। तो ये दोनों को हाफ करके, दोनों को प्लस करके हाफ करें तो हमको बचा है 75। जैसे ये 75 आया है, सेम रिमेनिंग वैल्यूज भी हमको वैसी आने वाले हैं। तो अब बोलो आप 85 प्लस 105 अगर हम करें तो कितना बचेगा, आई थिंक सो। जस्ट देखिए और अच्छे से सॉल्व करिए पूरे मिलकर, ऐसा नहीं कि मैं पूरे कॉपी करूं, आप लोग भी ट्राई करेंगे तो बेहतर है। जल्दी स्पीड में आपको एग्जामिनेशन में यही नंबर आना बोल के नहीं है, यहाँ पर कुछ भी आ सकते। तो वो दोनों को प्लस करना, डिवाइड करते जाना। चलो स्टार्ट करो, देखेंगे मेरे साथ कौन कितने बच्चे करना स्टार्ट करेंगे। अब बोलो 85 प्लस 105 कितना आ रहा है, जल्दी बोलिए। उसके बाद मेरे को बोलो वैल्यू कितनी आ रही, आई थिंक सो 95। इन दोनों को प्लस करके हाफ करें हम। उसके बाद 75 95, नेक्स्ट जल्दी जल्दी 115। सेम वही मेथड में मैं बाजू लिख चुका हूँ, वही मेथड को फॉलो करना है। 115, फिर उसके बाद आएगा 135। चेक कर लीजिए पूरे स्टूडेंट्स, 135, फिर 145 प्लस 165 को प्लस करके 2 से डिवाइड करो या दोनों का हाफ कर दो, आई थिंक सो 155। फिर इसी तरीके से 165 प्लस 185 प्लस डिवाइडेड बाई 2, इसको भी कर लो 175। एंड द लास्ट होगा 195। गॉट इट, आ चुका होगा सबको xi की वैल्यू। ये दोनों को प्लस करे, डिवाइड करे, प्लस करे, डिवाइड करे, प्लस करे, डिवाइड करे, देन वी आर गेटिंग xi। अब xi के बाद हमको आता है di का फॉर्मूला है xi माइनस a। हमको ये सॉल्व करना है। अब बोलेंगे सर यहाँ पर तो हम सिंपल डायरेक्ट मेथड का सो फार्मूला अप्लाई नहीं करें, वो तो ऑलरेडी हम प्रॉब्लम कर चुके हैं, उसको जरूरत नहीं है करने की। मगर हम ये प्रॉब्लम के अंदर अब सिंपल डायरेक्ट कैसा यूज़ करना, हम अभी ui लाना है। एक्चुअल हमको यहाँ पर ui आना है। ui का फॉर्मूला hi नहीं di बाई h भी लिख सकते, और xi माइनस a बाई h भी लिख सकते। इसकी वैल्यू आ गई तो हम उसको डिवाइड कर दो ना। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके अंदर फ्रीक्वेंसी में भी देख सकते हैं आप, सबसे बड़ा नंबर 20 है, तो हम इसको यूज़ करते हैं a, हम इसको यूज़ करते हैं a। इसी तरीके से अब हम इसके लाइन में जो वैल्यू बनते हैं 135, इधर a नहीं सपोज करके हमको इसको a सपोज करना है, क्योंकि हमारा सिंपल मेथड में यूज़ होगा वो अज्यूमिंग मेथड में। बट यहाँ पर हमारे को दूसरी चीज़ यूज़ करना है, यहाँ पर मीडियन हमको मीन में हमको यूज़ करना है कुछ अलग तरीके से। देखो कैसा यूज़ करेंगे हम बताएंगे हम आपको। ए अब यहाँ यूज़ करिए, यूज़ करके हमको पूरा, और ये एल की वैल्यू हो गई, ये एल वैल्यू बन गई 125 इसी के लाइन में। ओके, तो अब देखिए अब कैसा सॉल्व होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास xi माइनस यानी
एक्स आई माइनस ए। तो पहले वाले का जो एक्स आई की वैल्यू है यहाँ पे, तो डी आई फाइंड आउट करना है मेरे को। एक्स आई की वैल्यू है 75, ए क्या कंसिडर करा मैं 135। चलो डी आई, ये दोनों को माइनस करो, कितना हो रहा बोलो जल्दी। 135 में से 75 माइनस करो, 135 में से 75 माइनस करो, जस्ट कितना होगा 0 13 3 3 3 6, आई थिंक सो 60, यस 60। तो बड़े नंबर के साथ माइनस है तो -60 आ चुका है। सेम इसी तरीके से सेकेंड वाला फाइंड आउट करिए फॉर्मूले के हिसाब से। एक्स आई माइनस है, एक्स आई की वैल्यू, ये पूरे एक्स आई की वैल्यू है। एक्स आई में कौन है अब सेकेंड में 95 है, 95 माइनस इसको ए कौन है 135, 135 से ही माइनस करना है तो कितना होगा 135 में से 95 निकालना है, 0 1 4 -40 -60, तो यहाँ पर आ गया -40। अब जब -40 आ गया तो इसी तरीके से सेम अगेन 115 माइनस 135, चलो बोलो कितना होगा 135 माइनस 115, 0 2 हाँ -20 आ गया -20। इतना आसान है सिंप्लीफिकेशन, ये वैल्यूज वाला। यहाँ भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते कि सर हम यहाँ पर कौन सी चीज़ लेके किससे माइनस करना है। भाई आपके बॉक्स में ही आंसर्स है, बस उसको प्लस और माइनस करो, आंसर आ गया। तो हमको आ गया ये -20। अब यहाँ पे 135 माइनस 135, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो 0 बचा, 0। अब देखो इतना आसान है, अगर हम सोचे सर आपने बताया था कि यहाँ पर तो नेगेटिव में आए, नीचे वाले पूरे पॉजिटिव में आएंगे, देख लो आप कैसा कैसा। जैसे कि यहाँ पे 155 माइनस 135 माइनस करो तो आई थिंक सो 20 बचेगा, सिंपल। तो ये देखो ये -20 है तो +20 आ गया, ये -40 है तो +40 आएगा, या -60 है तो +60 आएगा। इतना आसान। और बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं और यहीं पे गलतियां करते हैं कि सर ये कैसा करना, ये रफ में कर लेना, ऐसा रफ में करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना 1-2 बार में, तो देखिए आपको किस तरीके से अच्छे से सॉल्व होगा। तो जितना हो सकता आसान तरीके से करने की कोशिश करो, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में और ओवर स्मार्ट चैलेंज मत करो। एग्जामिनेशन में हम जाके क्या करते, जल्दी जल्दी, अरे बहुत ईजी है, चल चल जल्दी जल्दी करने जाते, छोटी सी सिंप्लीफिकेशन में, छोटी सी साइन में, प्लस और माइनस में गलती हो जाए तो ये पूरा बॉक्स रॉन्ग हो जाता। तो एक एक चीज़ को अच्छे से देख के करना। अब देखो हमको डी आई की वैल्यू आ गई, तो अब बचे कौन एक्स आई। एक एक करके मैं बता रहा हूँ आपको, आसान से सुकून से कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे से समझो, ट्राई करिए। नाउ सी यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई एच, तो ऑलरेडी वी गॉट इट द डी आई, पूरे डी आई की वैल्यूज उसी को हमको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए देखिए, अब -16 पहला वाला है, डी आई की वैल्यू -16 मेरे को ये लाना है। डी आई क्या है माइनस यहाँ करूँगा मैं, -60 डिवाइडेड बाई, अब बोलेंगे सर h क्या है, अरे भाई ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे h मालूम हो जाएगा, दोनों का गैप, दोनों का डिस्टेंस, दोनों का रेंज 65 to 85, आई थिंक सो 60 70 80 यानी 20, तो h की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 20 हो गई। तो वो वैल्यू से हमको सबको डिवाइड करिए, देखो कैसा होता, ये 20 हो गया। अब मैं कहाँ सॉल्व करूँ, इसी के बाजू 60 डिवाइडेड बाई 20, माइनस है 0 0 कैंसल, 2 1 2 2 2 3 तो बचा कौन -3, सिंपल -3। तो यहाँ पर लिख दो -3। इसी तरीके से यहाँ पर भी -40 डिवाइडेड बाई -20, 0 0 कैंसल, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर माइनस क्यों आएगा, नहीं आएगा माइनस, सॉरी, 2 1 2 2 तो आंसर क्या है, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, तो -2, तो ईयर भी -2। आप भी करिए, ऐसा नहीं कि हमको खाली आदत हो जाए कि सर कराए और हम कॉपी करते रहे, ये हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये एग्जाम में भी आ जाए, इसी मेथड का कंपलसरी आएगा, 101% आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इन बोथ द सिलेबस। ओके, सो नाउ अगेन -20 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 कैंसल, 2 1 -1, -1। अब यहाँ कंफ्यूज होते बच्चे,
0/20 सर देयर इज नो साइन, 0/20 इसमें मीन्स व्हाट, जो हम रियल नंबर में भी पढ़े चैप्टर नंबर 1 में, रेशनल और इरेशनल भी हम पढ़ते हैं। तो जो p/q फॉर्म होता है, p/q फॉर्म, p इज न्यूमरेटर एंड q इज न्यूमरेटर, ये पढ़े होंगे हम p/q, तो मतलब है p न्यूमरेटर एंड, जब ऐसे कंडीशन में अगर 0 ऊपर आता है कुछ भी नीचे आता है स्वयं, डिनोमिनेटर में कुछ भी आने दो बट 0 अगर न्यूमरेटर में 0 हो जाए तो वो डायरेक्ट आंसर 0 होता है, तो हमारे पास इसको समझना जरूरी है। और अगर 1/0 आ जाए नीचे यानी ऊपर कुछ भी हो जाए नीचे 0 हो जाए तो वो हो जाता है नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं इसको और इन्फिनिटी भी बोलते हैं। ये बेसिक्स है हमको समझने के लिए, तो आई होप कि आपको यहाँ पर अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो अब ये क्या होगा, व्हाट 0/20 मीन्स नथिंग बट 0। अब ये 20/20 टू 40/20 टू सॉरी 20/20 1 होगा, वही ठीक है, -1 आया तो +1 होगा, ये +2 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। देखो कितना आसान है, समझे तो बहुत इजी है, नहीं समझे तो कुछ नहीं। हम एक दो प्रॉब्लम को समझ गए तो ऑटोमेटिकली हम सॉल्व कर सकते। देखो यहाँ पे हम क्या सॉल्व करें, फर्स्ट क्लास इंटरवल फाइंड आउट हुआ, सेकंड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हुआ, देन एक्सआई फाइंड आउट हुआ। वो फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी द क्वेश्चन इज गिवन, हम इसको यहाँ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। बट मेहनत करना किधर है, एक्सआई के ऊपर मेहनत करना है। एक्सआई किस तरीके से, दोनों को प्लस करे, हाफ कर दिए, और डीआई एक्सआई की हेल्प से सॉल्व हुआ, फिर डीआई होते की, फिर इन्हों डीआई की भी अब सपोर्ट करना है किसको, यूआई को, तो मतलब एक के एक सपोर्ट में है, बगैर सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, बोलते हैं ना, ये सही बात है। तो यहाँ पर जब यूआई आ गया, डीआई आ गया, लास्ट हमको आता है एफआई यूआई, जो हमको फाइंड आउट करना है इसमें। तो यूआई जिस तरीके से सॉल्व करे हैं हम, उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व करो। देखो कैसा, जैसे कि ऑलरेडी एफआई है, एफआई को और यूआई के ऊपर फिंगर रखो, यू सी 2 fingers इज देयर। देखो फर्स्ट 4 है, यहाँ पर यूआई के नीचे कौन है, -3, 4 -3, अगर हम पहले तो प्लस इंटू माइनस कर लेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, कभी भी ये याद दूंगा, प्लस इंटू माइनस इज नथिंग बट माइनस। तो अब मैं क्या करा, 4 3 जा 12, 5 2 जा -10, 13 1 जा -13, 20 0 जा 0, 14 1 जा 14। देखो मैं सॉल्व देख के करूंगा ना, 2 8 जा 16, 4 3 जा 12। मेरे को जरूरी नहीं है किसी के बाजू पेपर में देखने की या मेरे को किसी से पूछने की, भाई ये तो छोटे छोटे टेबल से 2 का टेबल, 3 का टेबल, 0 का टेबल, हम उसको देख के ही सॉल्व करें। तो मैं जहां तक समझ रहा हूँ बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। जब ये 3 चीजें हम अच्छे से समझ गए, अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखो क्या क्या करना है, अभी आपको बता दूं कि इसके अंदर जो चीजें हैं वो आप देखेंगे गौर से कि क्या कर रहे हैं हम। अब हम सॉल्व करेंगे मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला, स्टेप डिविएशन मेथड फॉर्मूला। स्टेप डिविएशन मेथड फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हमको जो जो वैल्यूज लेना है वो वैल्यूज लेके सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले हमको सवाल ये है कि सर आप पहले के प्रॉब्लम में यहाँ ए बताए थे, अरे ओनली फॉर दैट सम कंडीशन है उसके भी, मगर यहाँ पर एक्स आई को भी कंसिडर करना है। एक्स आई के अंदर ही स्मॉल ए को ले लो, तो मैं क्या करा एक्स आई के लिए, देखिए क्या करा मैं, एक्स आई की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू है 135, यहाँ लिख लो आप, ए वैल्यू है 135। फिर उसके बाद एफ आई यू आई, यानी जो एफ आई यू आई आई उसको सिग्मा यानी प्लस करना। तो प्लस कैसा करना, पहले ये दोनों ये तीनों को नेगेटिव नंबर एक जगह कर लो और पॉजिटिव नंबर एक जगह कर लो। देखो कितने हो रहे, 12 10 13। अगर हम इसको ही देख लेंगे, ये 22, ये 22 एंड 13 आ गया है 35, -35, ये -35 हो गया। और इधर देख लो 14, ये तो हमारा बराबर है ना, 10 + 12 22 एंड 13 का 13, ये तीनों को माइनस कर दिए तो -35 हो गया। यहाँ पे देखिए 10 20 30, 30 + 12 42 42 हो गया, ये तो 15 हो गया ना, ये तो 30 हो गया, 14 + 16 30 एंड दिस 30 + 12 42।
तो 42 प्लस में आ गया, ये माइनस में है, तो माइनस 35 इधर नीचे रखो, यानी 42 में से 35 को हमको माइनस करना है, तो ये 12 हो गया। 5 प्लस 5 एंड 7 बचा हमको, जस्ट यहाँ पर आंसर आया हमको 7, वो भी पॉजिटिव नंबर में। तो ये तरीके से हमको सॉल्व करना है, ये भी अच्छे से आना आपको। नेगेटिव नंबर एक जगह, पॉजिटिव नंबर एक जगह रखने के बाद ये छोटे नेगेटिव को माइनस कर दिए अगर हम इस तरीके से, तो देन वी आर गेटिंग FI/UI की वैल्यू आ गई। और इसी तरीके से सिग्मा FI की भी वैल्यू लाना है हमको। सिग्मा FI अगर हम पूरों को प्लस करेंगे, अब आप देखिए 4 + 5 4 + 5, अब ये पूरा ऐसी 9, 13, 20, 14, 8 एंड 4, आई थिंक 68 होगा पूरा मिला के, ये होगा 68। आप एक बार करके देखिए पूरे मिलकर, जहां तक मैं समझूंगा ये आ जाएगा। ये इतना सिंपल है, एडिशन करना है, एडिशन तो हम छोटे क्लासेस से कर लेते हैं। ये एक हो गया, ये भी हो गया, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम की तरफ देखेंगे, तो देखिए अब कैसा हो रहा प्रॉब्लम में। ए की वैल्यू आ गई, एज इट इज मैंने लिख दिया। अब मैं बचा जो है सिग्मा FI की वैल्यू मेरे पास आई 7, वो भी लिख दिया मैंने। ओके, अब देखो आप यहाँ पर प्लस और 135 इज इक्वल टू, सॉरी इस तरीके से लिखना है, नीट तरीके से। चलिए, सिग्मा FI की वैल्यू आ गई 68 इंटू H की वैल्यू है 20। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो आप यहाँ पर बच्चियाँ, ऑल द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में गलती करते हैं। यहाँ छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती है जो लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, मगर हम भूल जाते हैं। बच्चे एक्चुअल ज़्यादा भूलते हैं, मगर यहीं पे आके भूलने की बीमारी होती है। अगर कोई चीज़ दूसरी हो बहुत तो बहुत अच्छा याद रहता है। कोई एक मूवी के बारे में ले लो, कोई सॉन्ग्स या कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी कॉमेडी चीज़ें बहुत से अच्छी से याद रखते हैं हर वो चीज़ को, हर मामले में। तो यहाँ पे देखिए अब ये चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मैं बोलूँ यहाँ पे ये तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं होता, ये फ्रैक्शन पॉसिबिलिटी नहीं है कैंसिल होने की। तो उनके बाजू वालों को देखना इनटू में है, बल्कि अगर इनटू में न रहता तो यहाँ देखो एडिशन में इसको नहीं कर सकते हम, थोड़े बच्चे इसको भी कैंसिल करते, दैट इज रॉन्ग। ओके, अब यहाँ देखो ये कैंसिल होता 2 के टेबल में, 2 3 जा, 2 4 जा, छोटे छोटे नंबरों को देखो, 2 के टेबल में 2 3 जा, 2 4 जा, फिर इन्हों आगे 2 1 जा, बच्चे क्या 0 आ गया सर। अब अगेन फिर 2 के टेबल में कैंसिल होता क्या सर, 2 1 जा, एक बच गया 14 हो गया, 2 7 जा 14, ये 2 5 जा 10। अब कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि 17 के टेबल में 5 नहीं आता है, 5 2 जा, तो बेहतर है हमको क्या करना है 135 प्लस 7 इंटू 5 को ले लेना है बाजू वाले, 7 5 जा 35 बाई 17, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब 17 के टेबल में 35 वो भी नहीं आता, तो उसको हमको क्या करना है 17 को डिवाइड करना, 17 को डिवाइड करके देखना है 17 इंटू 35, तो क्या हो गया 17 1 जा 17, 17 2 जा क्या होता देखेंगे, 17 2 जा 2 14 कैरी 1, 2 1 जा 2 34, यस आ गया करीब, 17 2 जा 34 आ गया, माइनस 1 बचा, तो मतलब पॉइंट ले लिए हम, यहाँ नहीं लेते पॉइंट, गलती यहाँ करते हैं हम, यहाँ पॉइंट लेना 0 यहाँ, हाँ 2 पॉइंट भी ले सकते हैं आप ऐसा, क्योंकि 17 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो हम इस तरीके से ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 17 5 जा ले लेंगे, करके देखेंगे क्या होता, 17 5 जा 5 3 जा 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, ये तो नहीं हो सकता, 4 ले लेंगे, 4 7 जा 28, 2 ले लेंगे, 4 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6 68, तो अप्रॉक्सीमेटली में आएगा। सपोज यहाँ पर अगर आप फिर से 2 लेंगे या 3 से करेंगे तो भी, 4 से करेंगे तो भी आपको अप्रॉक्सीमेटली आएगा आंसर। तो वो हिसाब से हम आपको यहाँ क्या लिखेंगे 135 प्लस 2 पॉइंट, जो भी अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड करने पर वैल्यू आएगी आप उसको सॉल्व करते चले जाना। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसा हम सॉल्व कर रहे हैं इतना आसानी में। तो वो सॉल्व करते हुए देखिए क्या हुआ, 2 पॉइंट आई थिंक सो 0.5 भी ले सकते हैं आप और 2 पॉइंट समथिंग भी ले सकते हैं आप। उसके लिए आपको देखना ये है
कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो मैं जहां तक समझूंगा 2.05 ले लो, बेहतर है। 0.25 तो 0.5 तो कितना हो गया, ऐड कर लो 135। हमको यहाँ पर 2 रखना है, पॉइंट यहाँ लगा के 00, पॉइंट यहाँ लगा के 05, यानी प्लस को पॉइंट के नीचे ही रखना है, माइनस हो या प्लस हो। 5 का 5, 0 का 0, 0.731। तो आई थिंक सो 137.05 इज द आंसर। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इतना सॉल्व करने के बाद हमको आंसर बना है 137.05। देखो कितना इजी है, समझे तो इजी है, नहीं समझे तो कुछ भी नहीं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना हम प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करेंगे। फर्स्ट हमको ये समझना है कि क्वेश्चन में से क्या क्या चीजें आसानी से कॉपी करना है। वो तो बहुत आसान है कॉपी करना, वो तो पहले हमको अच्छा था। तो उसमें थोड़ा सा एडवांस हो जाओ, यानी स्मार्ट माइंड यूज करो कि कितने चीजें कॉपी करना है वो तो कॉपी कर लेंगे, बाकी में क्या चीज हमको फाइंड आउट करना है वो चीज कर लेंगे। फिर ये भी देखो 1 2 3 4 कॉलम्स प्रैक्टिस वन टाइम, वो भी एक के ऊपर एक डिपेंड है उन लोग। ये लाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये लाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये लाएंगे तो ये भी वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया हमारा। अब ये चारों हम बन गए, बनने के बाद हमको फॉर्मूला बना मीन में जो हम सॉल्व करें। एनी डाउट? आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझो और प्रैक्टिस करो और शेयर भी करो, कई बच्चों का फायदा हो जाएगा। हर किसी को शेयर करो, क्योंकि ये आसानी से हमको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है फॉर 5 to 6 मार्क्स इन बोथ द सिलेबस CBSE and SAQ। ओके, थैंक्स and watching. This is my videos. Write it, write on fast.